Hello dear students, I welcome you all in today's lecture. Today we are going to study the new chapter from the subject pharmaceutical engineering. So the name of this chapter is heat transfer. In this lecture we are going to study about the introductory part of the heat transfer, that is what heat transfer is, then the mechanism or the flow of heat transfer, after that application of heat transfer in pharmaceutical engineering, and the law which is responsible for the heat transfer and equipments used in heat transfer in the form of heat interchangers and heat exchangers. Okay, so first we will study what is heat transfer. So what is heat? Heat is nothing but the form of energy. So for carrying out the procedure of heat transfer, we have already studied in evaporation, in crystallization, that is transfer of heat is required to carry out their processes such as the evaporation, crystallization, distillation, drying. So all these unit operation needs the transfer of heat in some or different manner. Okay, so here the number of sources of heat is used for the industrial scale operations. Okay, but the widely used heat sources are the steam and the electric power. Okay, so the chief or the main sources of heat which is used in the industry to carry out the heat processes or to carry out the transfer of हीट और हीट एक्सचेंजेस इज नथिंग बट द स्टीम एंड इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है, जैसे कि हमने इवापोरेशन में भी पढ़ा था. इवापोरेशन में क्या था कि हीट सोर्स, कौन सा हीट सोर्स हमने यूज किया था इन केस ऑफ द इवापोरेटर्स, दैट इज स्टीम इज यूज. सो लाइकवाइज दैट कि हीट सोर्सेस, नंबर ऑफ हीट सोर्सेस प्रेजेंट है, बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में हमें जो प्रोसीजर कैरी आउट करना है, जैसे कि वो ड्राइंग हो सकता है, इवापोरेशन हो सकता है, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा. ओके, सो उन प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए द मेनली एंड वाइडली यूज्ड हीट सोर्सेस आर द स्टीम एंड इलेक्ट्रिक power. Okay, so heat transfer is nothing but the transferring of heat from one substances, from one media, from one object to another object. Okay, now these are the mechanism of heat transfer, or the flow of heat will be followed by these three mechanisms. First one is the conduction, then convection, and last one is the radiation. Okay, now what is conduction? So conduction is the process of transfer of heat between two substances that are physically in contact with each other without mixing. ठीक है, कंडक्शन में क्या हो रहा है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि कंडक्शन में क्या हो रहा है, द हीट इज ट्रांसफरिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, बट दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, बट दे द मिक्सिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन बिटवीन देम. ठीक है, उसमें मिक्सिंग होता है क्या, नहीं. विदाउट मिक्सिंग देर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द टू सब्सटेंसेस विच आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, बट द मिक्सिंग इज नॉट देयर. सो इफ देर इज एन हीट ट्रांसफर बिटवीन टू सब्सटेंसेस which are present in physical contact with each other without mixing, so that process is referred as the conduction. Okay, then next is the convection. Convection में क्या होता है, there is a transfer of heat or transfer of thermal energy in between the two substances, or generally this happens in between the two fluids, two liquid, that is hotter places towards the colder places. Okay, that is by mixing the warmer portion with cooler portion of the same material. Means here what is happening, here there is a exchange of heat, there is a transfer of thermal energy between the two substances or between the same material, just like the hot water and cold water. ठीक है, so but here the mixing process is followed. Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है, mixing is followed, means the heat is transferred, the thermal energy is transferred between the two substances or between the two portions of the same material by mixing, with the help of mixing. So that procedure in which there is a transfer of heat with mixing or by use of mixing is nothing but the convection. Okay, now last one is the radiation. So what happens in radiation? Radiation is nothing but the exchange of thermal energy or transfer of thermal energy by the electromagnetic waves. ठीक है, so
इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, मिक्सिंग नॉन मिक्सिंग का कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट क्या होता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय electromagnetic force, electromagnetic waves. Okay, so these are the three mechanisms of heat transfer. First is the conduction, where the two substances are present in physical contact with each other and heat is transferred between them without mixing. Then second one is the convection, where the thermal energy or the heat is transferred between the टू पोर्शन ऑफ द सेम मटेरियल विथ मिक्सिंग. एंड लास्ट वन इज द रेडिएशन, जिसमें मिक्सिंग का कोई लेना देना नहीं है, बट हीट इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves. Okay, so this is the mechanism, simple mechanism but important one. Okay, now this is the example of your conduction, convection and radiation. Okay, what is happening in conduction? Energy is transferred by direct contact, such as यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या हो रहा है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है क्या, आपका हैंड, सपोज कि यू आर टचिंग, क्या कर रहे हो आप, डायरेक्ट ये जो फ्लेम पे रखा है उस कंटेनर को आप टच कर रहे हो, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम दैट कंटेनर टूवर्ड्स योर हैंड. यहाँ पे मिक्सिंग विक्सिंग कुछ हो रहा है क्या, ना, कुछ भी नहीं हो रहा है. ओके, सो दिस इज रेफर्ड एज कंडक्शन. ओके, देन कन्वेक्शन, एनर्जी इज ट्रांसफर बाय द मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा सीधा आप ये कंटेनर में देखो, ठीक है, कंटेनर में क्या हो रहा है कि बॉटम में के मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, फर्स्ट वार्म हो गए, क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है, आपका स्टीम जा रहा है, सॉरी नीचे से आपका क्या है, फ्लेम में से हीट ट्रांसफर हो रहा है. तो ये मूवमेंट क्या करेगी, गर्म होने के बाद खुद टॉप पे जाके सेटल हो जाएंगे, और टॉप में जो आपके कूलर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो बॉटम में आ जाएंगे. मतलब मिक्सिंग ऑफ क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है ना मॉलिक्यूल्स. ओके, सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, एनर्जी इज ट्रांसफर बाय द मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो हॉट, वार्म, कूल, फिर क्या होगा, कूल को रिप्लेस कर देंगे हॉट मॉलिक्यूल, कूल को नीचे भेज दे कि जाओ अब आप भी गर्म होके आ जाओ. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द कन्वेक्शन. एंड लास्ट इज द रेडिएशन, कि क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे फ्लेम है, आपका फायरवर्क्स शुरू है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको ठंड लग रही है, ठीक है, तो ठंड लग रही है तो आप डायरेक्ट जाके उस पर हाथ रख दोगे क्या, नहीं. व्हाट इज हैपनिंग हियर, एनर्जी इज ट्रांसफर बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation. So this is the conduction, convection and your radiation. Okay, now next is the heat transfer application. So ये heat transfer तो हम पढ़ रहे हैं, but what is the application of your heat transfer? First is the evaporation, जो कि हमने recent में पढ़ा है कि heat is supplied in order to convert a liquid into a vapor, और सीधा सीधा to get a concentrate product. Okay, कि क्या हो रहा है, इसमें हीट क्यों ट्रांसफर करनी पड़ रही है इवोपरेशन में, बिकॉज जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उसको हमें वेपर में कन्वर्ट करना है. सो फॉर दैट पर्पज हीट ट्रांसफर इज इसेंशियल इन केस ऑफ इवोपरेशन. ओके, नेक्स्ट डिस्टिलेशन, हीट इज सप्लाइड टू लिक्विड मिक्सचर फॉर सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल वेपर कंपोनेंट. हियर क्या हो रहा है डिस्टिलेशन में, कि फॉर सेपरेशन ऑफ वेपर कंपोनेंट फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर वी कैन यूज द हीट ट्रांसफर. यहाँ पे हीट ट्रांसफर उसके लिए काम में आएगा. ओके, नेक्स्ट इज द ड्राइंग. सो फॉर ड्राइंग द वेट ग्रैन्यूल्स, ठीक है, कि कोई भी है ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे ग्रैन्यूल्स जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट आपका होता है ग्रैन्यूल्स में, ठीक है, तो जहाँ पे आप वेट ग्रैन्युलेशन करते हो तो उसमें से हमें मॉइस्चर के ट्रेसेस निकालने के लिए, या आपका ग्रैन्यूल्स आपको क्या होना, अनहाइड्रस होना, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे ग्रैन्यूल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या, हीट की ज़रूरत लगेगी. ओके, सो द नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड टू ब्रिंग आउट द सुपर सैचुरेशन विच प्रमोट्स द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ड्रग्स. ओके, सो क्रिस्टलाइजेशन हमने पढ़ा है, तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि सबसे इसेंशियल क्रिस्टलाइजेशन में कौन सी स्टेप है, कि वी हैव टू गेट द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सबसे बड़ी नीड, सबसे बड़ा डिमांड क्या है हमारा, कि क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे हमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए, बिकॉज कि जब हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा तभी हमारे पास क्या होगा, वो क्रिस्टल ग्रोथ का मीडियम तैयार हो जाएगा. ओके, सो दैट्स वाई हियर इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड टू गेट द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन because for the formation of crystal growth. Okay, so next is sterilization. So what happens in sterilization, autoclaves are used with steam as a heating
मीडियम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इक्विपमेंट, ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं, जो कि आपने माइक्रोबायोलॉजी में किया होगा, ठीक है। तो ऑटोक्लेव यूज़ करके क्या होता है, ऑटोक्लेव इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ हीट। यहाँ पे समझ लो आपकी, उसमें से क्या हो रहा है, आपका स्टीम पास हो रहा है और स्टरलाइज कर रहे हैं आप। सपोज से आपके एपरेटस को स्टरलाइज कर रहे हैं या कौन से मीडिया को स्टरलाइज कर रहे हैं, सो फॉर दैट पर्पस द हीट इज यूज्ड, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट प्रोसेसेस in which the heat transfer is applicable, and it is important to carry out evaporation, distillation, drying, crystallization, sterilization, etc. operations, okay. Now next is the Fourier's law, okay. So the Fourier is a scientist जिन्होंने हमें बताया है कि हीट ट्रांसफ़र किस पे डिपेंडेंट है और हीट ट्रांसफ़र का स्टडी करने के लिए कौन से पैरामीटर्स इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टडिंग द फोरियर्स लॉ, जस्ट स्टडी द फ्लो ऑफ हीट, कि क्या होता है हीट ट्रांसफ़र होने से पहले फ्लो ऑफ हीट कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेंगे कि फ्लो ऑफ हीट ने क्या दो वे से होता है, ठीक है। फर्स्ट इज द सराउंडिंग के वजह से होता है, मीन्स क्या कि हीट कैन बी ट्रांसफर बाय फॉलोइंग द सराउंडिंग, और सेकेंड वन होता है कि बाउंड्री बेसिस पे। सपोज से फॉर एग्जांपल ओके, सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है आपको जो दिख रहा है, फर्स्ट वाला डायग्राम, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक हमने सर्कल बना लिया है, इसमें जो बीच में डॉट है वो डॉट समझो आपका नहीं क्या फायर है यहाँ पे, ठीक है। फायर वर्क शुरू है और ये जो आपका बीच में है वो है आपका फायर, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र या फ्लो ऑफ हीट दो वे से होता है, फर्स्ट ये है सराउंडिंग और ये है बाउंड्री वे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट द फायर वर्क्स, की आग की चलो भट्टी लगा दी है हमने बीच में और हमें ठंड लग रही है, तो उसकी वजह से हमने वो फायर वर्क्स ऑन कर दिया है, शुरू कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सराउंडिंग में, मतलब यहाँ से एयर के मीडियम से, क्योंकि दूसरा तो कुछ प्रेजेंट नहीं, एयर के मीडियम से, हीटेड एयर के वजह से यहाँ पे आसपास में क्या होगा, आपका फ्लो ऑफ हीट आपका ट्रांसफ़र होगा। ये हो गया सराउंडिंग वे से, एंड सेकेंड इज द बाउंड्री वे से। बाउंड्री वे से सपोज दिस इज अ आयरन रॉड समझ लो, ठीक है। आयरन रॉड है तो आयरन रॉड आयरन का सलिया है जिसको हम एक साइड से नहीं क्या गर्म करेंगे, ठीक है। एक साइड से आप क्या कर रहे हो, इसको टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है। मतलब एक साइड से टेम्परेचर इसको प्रोवाइड कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो, और थोड़ी देर के बाद अगर आपने इस साइड से भी छुआ उसको तो इस साइड से भी वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हॉट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये हो रहा है बाउंड्री वे से, ठीक है। मतलब बाउंड्री से करके क्या हो रहा है, आपका हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब क्या, फ्लो ऑफ हीट या हीट ट्रांसफ़र कौन से मीडियम से हो रहा है, दो मीडियम से हो रहा है। फर्स्ट वन इज द सराउंडिंग मीडियम, कि जहाँ पे कोई बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है मतलब क्या है कि यहाँ पे सेंटर में जो आपका फायर है, यहाँ सेंटर में से आपका आजू बाजू सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है वो एयर हॉट हो जाएगा और सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर भी हॉट करेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज द सराउंडिंग वन, ठीक है। फ्लो ऑफ हीट कौन से तरीके से हो रहा है, सराउंडिंग से। और नेक्स्ट है बाउंड्री। बाउंड्री क्या है, आयरन रॉड लिया है हमने, एक साइड से उसको गर्म किया, पर थोड़ी देर के बाद अगर आपने अगली साइड अपोजिट साइड को टच किया तो अपोजिट साइड भी आपको क्या लगेगी कि हॉट, बिकॉज क्या, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है। मतलब पास ट्रांसफर यहाँ से करके यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है, ओके। सो दिस इज द फ्लो ट्रांसफर और ऑफ हीट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द फोरियर्स लॉ। फोरियर्स लॉ, जो फोरियर साइंटिस्ट है वो क्या बोलते हैं, सो दिस लॉ स्टेट्स दैट the rate of heat flow through a uniform material is proportional to the area and the temperature drop and inversely proportional to the length of the path flow। सीधा सीधा हम जाते हैं ये इक्वेशन पे, ठीक है। इक्वेशन क्या बोल रहा है हमें कि डी क्यू बाई डी टी इक्वस टू माइनस के ए डी टी बाय डी एल, ओके। अब समझो यहाँ पे क्या क्या है वो समझ लो कि डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डी क्यू बाई डी टी इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। यहाँ पे के इज कॉन्स्टेंट, ए इज द एरिया, डी टी इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस इन द टेम्परेचर, जिसको हम टेम्परेचर ड्रॉप भी बोल सकते हैं। डी एल इज नथिंग बट द लेंथ, ओके। तो यहाँ पे फोरियर्स लॉ की ऑन फोरियर्स के
फोरियर्स के हिसाब से फ्लो ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द 3 पैरामीटर्स. फर्स्ट वन इज द एरिया, सेकेंड वन इज द लेंथ एंड थर्ड वन इज द टेम्परेचर. ठीक है, कि फोरियर्स के हिसाब से, जो कि फोरियर्स ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पे फ्लो ऑफ हीट कौन से 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है. फर्स्ट है कि एरिया. चलो से फॉर एग्जांपल कि हमने कोई एक बड़ा वाला 2 रॉड्स को हमें हीट करना है. ठीक है, एक रॉड का एरिया बड़ा है, दूसरे का छोटा है. ठीक है, मतलब क्या, डिपेंडेंट ऑन द एरिया. फ्लो ऑफ हीट क्या करेगी, जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी क्या होगा, फास्टर होगा. ठीक है, नेक्स्ट है लेंथ. ठीक है, अगेन जिसका लेंथ कम, ठीक है, जिसका लेंथ कम उसमें हीट ऑफ ट्रांसफर ज़्यादा. से फॉर एग्जांपल, फिर से हम एक एग्जांपल लेंगे. ये 2 रॉड प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे 2 रॉड प्रेजेंट है. सो ये फर्स्ट रॉड हो गया, ये सेकेंड रॉड हो गया. ठीक है, अब लेंथ का कैसे कर सकते हैं हम रिलेशन. ठीक है, रिलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और आपका लेंथ का. ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला रॉड छोटा है, तो आपने एक साइड से यहाँ पे क्या किया, उसको हॉट किया, तो ये लेंथ के हिसाब से दूसरे साइड में जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, इस रॉड के कंपैरिजन में ये टाइम कम लेगा क्योंकि इसकी लेंथ कम है. ठीक है, वही अगर इस रॉड को देखेंगे हम, तो ये रॉड का अगर एक पोर्शन आपने हॉट किया, तो इस रॉड से ये पॉइंट तक जाने के लिए उसको टाइम ज़्यादा लगेगा. क्यों ज़्यादा लगेगा, बिकॉज हियर द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज लार्जर एज कम्पेयर टू दिस रॉड. मतलब क्या, रेट, आप क्या बोल सकते हो कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लेंथ. ठीक है, अब समझ में आया. और टेम्परेचर मीन्स क्या, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ड्रॉप, की टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलो, टेम्परेचर डिफरेंस बोलो, कि ये सब फेनोमेनन, ये सब खेल किस चीज़ पे डिपेंड है, डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. की टेम्परेचर पे क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर द हीट ट्रांसफर विल एक्ट. ठीक है, ओके. तो अब फोरियर्स लॉ के हिसाब से आप सीधा यहाँ पे ये इस साइड आ जाओ कि राइट हैंड साइड क्या बोल रही है उसकी, कि के कांस्टेंट है, ए एरिया है और डी टी क्या है, टेम्परेचर ड्रॉप, बाय डी एल क्या है, लेंथ. ठीक है, मतलब ये क्या है, डी क्यू बाई डी टी. डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट द rate of heat transfer. So rate of heat transfer is directly proportional to area Q. Directly proportional to area Q, क्योंकि जैसा जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. ओके, एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या, एरिया एंड योर टेम्परेचर ड्रॉप. देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ Q, क्योंकि कम लेंथ तो ज़्यादा आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ज़्यादा लेंथ तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैसा, कम. सो दिस इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ Fourier's law. That is, Fourier's law states that the rate of heat flow through a uniform material is proportional to the area, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड टेम्परेचर ड्रॉप, जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में कौन प्रेजेंट है, आपका लेंथ. तो लेंथ को आपका रेट ऑफ हीट फ्लो क्या हो गया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर लेंथ. ठीक है, समझ में आया. सो दिस इज द Fourier's law which states the relationship in between the rate of heat transfer to the area, length and temperature. Okay, now next, so in your syllabus of heat transfer, the 2 types of equipments are given. First are the heat exchangers and the second are the heat interchangers. Okay, now first we are going to study about the heat exchanger. Exchanger means क्या, कि heat को exchange करने के लिए क्या चाहिए, आपको 2 सेम मटेरियल चाहिए. ठीक है, मतलब सेम मटेरियल के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र होगी उसको आप बोलोगे हीट एक्सचेंजर. अगर वो मटेरियल अलग हो, सेम ना हो, 2 अलग मटेरियल में हीट ट्रांसफर हो रहा है, सो दैट इज नथिंग बट द हीट इंटरचेंजर. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वी आर going to study about the heat exchanger. Means these are the devices used for transferring the heat from one fluid to another fluid. मतलब क्या हो गया, दोनों सेम मटेरियल, फ्लूइड हो गए दोनों. ओके, थ्रू अ मेटल वॉल. ठीक है, एक्सचेंजर मतलब दोनों सेम मटेरियल होने चाहिए, सेम मीडियम होने चाहिए, सेम मैटर्स होने चाहिए. जैसे कि फ्लूइड 2 फ्लूइड में हो रहा है, थ्रू अ मेटल वॉल क्या हो रहा है, हीट आपका ट्रांसफर हो रहा है. दैट इज नथिंग बट द हीट एक्सचेंजर. ऐसे डिवाइस कि जिसमें 2 सिमिलर मटेरियल में आपका हीट ट्रांसफर होता है थ्रू अ मेटल वॉल, वैसे डिवाइस को आप बोल सकते हो हीट एक्सचेंजर. और इसका अपोजिट क्या, कि 2 अलग मटेरियल में अगर हीट ट्रांसफर होते होंगे
एक ही मेटल वॉल में, सो दैट आर नथिंग बट द हीट इंटरचेंजर्स. ओके, सो सम हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स आर ट्यूबुलर हीटर, multi-pass heater and two-pass floating heater. Okay, so we will start with the tubular heater. So first is the shell and tube heater. It is very simple. multi-pass shell and tube heater दोनों सिंगल दोनों सेम है. अगर एक पढ़ लोगे और बस थोड़ा सा डिफरेंस है तो आपको सेकंड वाला भी इजीली आ जाएगा, क्योंकि बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल. ओके, सो दिस शेल एंड ट्यूब हीटर इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर हीटर. ट्यूबुलर हीटर मीन्स नंबर ऑफ ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर केसिंग और पर्टिकुलर हीटर, सो दैट्स वाई इट इज रेफर्ड एज द ट्यूबुलर हीटर. ओके, सिंपल है. ओके, सो इट इज अ सिंगल पास ट्यूबुलर हीटर. इसको सिंगल पास ट्यूबुलर हीटर क्यों बोला है? क्योंकि एक ही बार आपके इक्विपमेंट में आपका फ्लूइड पास होगा. ठीक है, इसको सिंगल पास इसलिए बोला है क्योंकि सेकंड क्या है हमारे पास? मल्टी पास. मल्टी पास मतलब क्या? एक से ज़्यादा बार आपके सिस्टम में वो पर्टिकुलर फ्लूइड को घूमना पड़ेगा. दैट्स वाई इट इज रेफर्ड एज मल्टी पास. ओके, तो मल्टी पास के अपोजिट क्या हुआ? सिंगल पास. मतलब ये शेल एंड ट्यूब हीटर में जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है ट्यूबुलर हीटर का, उसमें एक ही बार आपके इक्विपमेंट को रहना पड़ेगा और वो हॉट होके ट्यूब में से बाहर निकल जाएगा. ओके, मतलब हीट एक्सचेंज हो जाएगी एक ही बार सिंगल. ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ पैरेलल ट्यूब्स. ठीक है, कि देखिए ये बंडल ऑफ पैरेलल ट्यूब्स आर प्रेजेंट हियर. ओके, then the end of these tubes are expanded into two tube sheet, that is B1 and B2. ठीक है, दो ट्यूब शीट है. फर्स्ट वन इज द B1 एंड B2. ये नंबर ऑफ पैरेलल बंडल ऑफ पैरेलल ट्यूब्स प्रेजेंट है जिन्होंने खुद को दो जगह पे एक्सटेंड किया हुआ है. एक हो गया B1, एक हो गया B2. ओके, सो इट हैज़ द टू डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर्स इन इट. फर्स्ट वन इज द D1 चेम्बर, second one is the D2 chamber. Okay, it consists of two types of coverings. First one is the E1, that is side cover. Second is the E2, सिर्फ उसको पैक करने के लिए, एनक्लोज करने के लिए. Okay, it consists of a fluid inlet. Okay, इन द B1 शेल. ये जो B1 शेल है, ये शेल में एक इनलेट प्रेजेंट है. ओके, और यहाँ पे B2 शेल के आसपास क्या G करके एक वेंट प्रेजेंट है जो कि कंडेंसेट आउटलेट है. ओके, ये पूरा सिस्टम एक ही केसिंग में पैक है जिसको बोलेंगे C आप. ठीक है, एक केसिंग एक सिलेंड्रिकल वेसल में पैक है जिसको आप बोलेंगे C. ठीक है, और वन स्टीम इनलेट इज प्रेजेंट एट द टॉप. ओके, एंड द टू डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर्स आर देयर, D1 and D2 is there. Okay, so फिर से एक बार रिपीट करोगी. इट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ पैरेलल ट्यूब्स. द एंड ऑफ द ट्यूब्स आर एक्सपांडेड इनटू द टू ट्यूब शीट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज द B1, सेकेंड इज द B2. ओके, बंडल ऑफ ट्यूब इज एनक्लोज्ड इन द सिलेंड्रिकल शेल C, जो कि पूरा केसिंग का नाम है, उसको C दिया है उन्होंने. टू डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स, दैट इज D1 and D2 आर प्रोवाइडेड एट ईच एंड ऑफ द केसिंग C, दैट इज दिस इज D1, दिस इज D2. ओके, फ्लूइड इनलेट एट चेम्बर D2. ठीक है, ये चेम्बर D2 बोलो या B1 का लाइन बोलो सीधा सीधा कि फ्लूइड इनलेट इज प्रेजेंट, दैट इज इन द D2. द हीट फ्लूइड आउटलेट एट द चेम्बर D1. ठीक है, फ्लूइड का आउटलेट कहाँ पे प्रेजेंट है? आपका D1 में प्रेजेंट है. टू कवर्स E1 and E2, दिस इज E1, this is E2. These are the side covers are provided to close the distribution chambers from side and साइड स्टीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द F. जहाँ से स्टीम की एंट्री होगी आपकी उसको बोला है आपने F. ठीक है, कंडेंस्ड वेफर टू ड्रेन फ्रॉम G. जो भी कंडेंसेट्स है वो कंडेंसेट्स को बाहर निकालने के लिए G में से आप बाहर निकालोगे. सो दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ योर शेल एंड ट्यूब हीटर. सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है? पैरेलल्स बंडल प्रेजेंट है और सबके नाम याद रखने की क्या कि आपके पास ट्यूब शीट्स है B1 B2. ठीक है, उसके बाद दो डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर है D1 D2, दो साइड कवर्स है E1 E2, एक पूरा ट्यूबुलर अरेंजमेंट आपका एक ही केसिंग में जिसको C से नाम दिया है आपने, एक स्टीम इनलेट है जिसका नाम F से है. ठीक है, और एक आउटलेट है जो कि D1 डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर में प्रेजेंट है. ठीक है, एक D2 में आपका इनलेट प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये सारी बातें आपको लिखना है इन केस ऑफ द कंस्ट्रक्शन. नाउ वर्किंग. So steam is introduced through a F into the space surrounding the tubes. ठीक है, सीधा सीधा कि जहाँ से स्टीम की एंट्री के लिए बनाया है वेंट, वहाँ से आपकी स्टीम की एंट्री होगी. सो स्टीम फ्लोज डाउन द ट्यूब्स. इन दिस प्रोसेस द ट्यूब गेट हीटेड. ठीक है, स्टीम आपका क्या प्रेजेंट रहेगा?
ट्यूब्स में नहीं प्रेजेंट रहेगा, साइड में प्रेजेंट रहेगा उसके, लेकिन हीट एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, अब ये कौन सा वे है हीट एक्सचेंज का? कंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, कंडक्ट कर रहा है आपके वो मेटल वॉल। ठीक है, हीट को कंडक्ट करा है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही है। ठीक है, सो द फ्लूइड हीटेड एंड द फ्लूइड फ्लो थ्रू द ट्यूब्स, the steam and the fluid are physically separated but the thermal contact through the thin tube walls। ठीक है, फिजिकली वो सेपरेटेड है बट क्या हो रहा है कि थर्मल कॉन्टैक्ट उनका प्रेजेंट है थ्रू द थिन ट्यूब वॉल्स। ओके, फ्लूइड गेट हीटेड बाय कंडक्शन थ्रू द मेटल वॉल। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग नहीं हो रही है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है सिर्फ उन दोनों का। तो ये उसके वजह से क्या हो रहा है कि द फ्लूइड गेट हीटेड बाय द कंडक्शन। ओके, thus द हीटेड फ्लूइड रीचेस द एग्जिट पॉइंट। बस हो गया सिंपल, कि क्या कि एक्सचेंज होने के बाद वो हॉट हो जाएगा, देन इट विल गो टूवर्ड्स द एग्जिट पॉइंट। मतलब क्या हो रहा है, सीधा यहाँ से फ्लो हो रहा है, फ्लो होने के बाद वो हॉट हो रहा है। ये एरो देखो, अपवर्ड एरो जा रहा है, अपवर्ड क्या है, यहाँ पे वेंट प्रेजेंट है जो कि आउटलेट है हॉट फ्लूइड के लिए। ओके, सो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ योर शेल एंड ट्यूब heater। Okay, so advantages, that is in single pass tubular heater large heating surface can be packed into the small volume। ठीक है, heating surface ज़्यादा बड़ा होता है, so this is the advantage। disadvantage is the speed or velocity of the fluid flowing in these tubes is low because large cross sectional area or the larger surface। ठीक है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका स्पीड फ्लूइड की कम हो रही है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा टाइम लगेगा आपका फ्लूइड को हीट होने में। ठीक है, द एक्सपांशन ऑफ ट्यूब्स एंड द शेल टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर। ओके, मीन्स टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर डिफरेंसेस आएगा इसमें। सो दिस में लीड टू लूजनिंग ऑफ योर ट्यूब शीट्स एंड बकल द ट्यूब। ओके, जिसकी वजह से आपके ट्यूब को डैमेज हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल ट्यूब हीटर। ओके, नेक्स्ट इज द मल्टीपास हीटर। ठीक है, अब सिंगल पास में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही बार आपके सिस्टम में आपके फ्लूइड को आना पड़ रहा है और उसके बाद उसको एक ही अटेम्प्ट में वो हीट होके हॉट होके सिस्टम के बाहर जा रहा है। ओके, सो अनलाइक दैट मल्टीपास हीटर का मीनिंग क्या है कि एक से ज़्यादा बार, ठीक है, एक से ज़्यादा बार आपके लिक्विड को वो सिस्टम में रहना पड़ेगा और उसके बाद ही वो हॉट होके वो सिस्टम में से बाहर जाएगा। सो दिस इज द ओनली वन डिफरेंस इन बिटवीन द सिंगल पास एंड मल्टी पास हीटर। रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल द अरेंजमेंट्स आर सेम। ठीक है, बस सॉरी, यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी होगी कि नंबर ऑफ टाइम्स आपके सिस्टम में वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में से वो पर्टिकुलर फ्लूइड को जाना पड़ेगा। ठीक है, बस बाकी ट्यूब्यूलर है उनमें भी ट्यूब रहेंगे, इसमें भी ट्यूब रहेंगे, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंबर उनमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, सो द लिक्विड टू बी हीटेड इज पास थ्रू द ट्यूब सेवरल टाइम बिफोर लीविंग द इक्विपमेंट। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सिंगल एंड मल्टी पास हीटर इज दैट in the single pass heater the fluid should go once in the equipment, then it can be collected from the outlet. Okay, but unlike that in multipass heater the liquid to be heated should be passed through the tube several times before leaving the equipment. Okay, then construction in is same as a tubular heater. It consists of bundle of parallel tubes. Okay, two distributing chambers are provided at each end of the casing. Since the heater is multipass, the same liquid has to flow through the several tubes back forth. ठीक है, अब इसका एक बात आपको याद रखना है कंस्ट्रक्शन में भी कि क्या आपको क्या करना है कि एक से ज़्यादा बार आपके लिक्विड को वो सिस्टम में रहना है, वो इक्विपमेंट में रहना है, मतलब आपका मल्टीपास हीटर है। ठीक है, तो उसके लिए आपका फ्लो several times रहना चाहिए into the equipment in the back and forth, forward and backward direction. Okay, so the entrance and exit point of the fluid are arranged in the same distribution chamber. ठीक है, उसके बेसिस पे आपका एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेम्बर में आपको अरेंज करना है कि नंबर ऑफ टाइम्स आपका लिक्विड वो इक्विपमेंट में आना चाहिए। ओके, सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ योर मल्टीपास ट्यूब। तो इसमें भी क्या हो रहा है, फर्स्ट इसमें 1 2 3 4, ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है 1 2 3 4, इसमें भी क्या हो रहा है सिंगल डबल,
ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है 1 2 3 4, मतलब ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि मल्टी पास हीटर में क्या हो रहा है कि अलग अलग कंपार्टमेंट में से आपके लिक्विड को जाना है, बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। बाकी स्टीम आएगा, स्टीम सिस्टम को हॉट करेगा, मेटल केसिंग को हॉट करेगा, कंडक्शन से ही आपका क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। कंडक्शन मतलब क्या है, मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा दो मीडियम में से हीट ट्रांसफर होके आपका हीट ट्रांसफर कर लेगा, वो ट्यूब वॉल में से आपका लिक्विड हॉट हो जाएगा। बट द ओनली डिफरेंस इज इसको 4 बार झटके खाते हुए आपके सिस्टम में से गुजरना है। ओके, so working, steam is introduced through the space surrounding the tubes. The liquid enters compartment A and flows to left compartment B, ठीक है, back to the right compartment and so on in the same alphabetical order। जैसे कि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे A सबसे फॉर एग्जाम्पल ABCD, ठीक है, मतलब HFBD जो भी है, तो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से आगे, आगे से ऊपर, ऐसे बैक फोर्थ डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा। ओके, मतलब क्या हो रहा है कि सेवरल टाइम्स आपका आपके इक्विपमेंट में आपका लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्लूइड ट्यूब्स गेट हीटेड बाय कंडक्शन थ्रू द मेटल वॉल, ठीक है, स्टीम के एंट्री की वजह से आपका मेटल वॉल क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और मेटल वॉल क्या करेगा, खुद का हीट ट्रांसफर करेगा आपके लिक्विड को, जिसकी वजह से आपका फ्लूइड भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है। दस द फ्लूइड पासेस बैक फोर्थ थ्रू सेवरल ट्यूब्स एंड लीव्स द इक्विपमेंट एट आई, ठीक है। अब एक पोजीशन बताइए कि क्या, कि ए में जा रहा है, ठीक है, ए में से बी में, सॉरी सी में जा रहा है, यहाँ पे सी में से जी में जा रहा है, जी में से आई में जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या इनलेट है, ठीक है, ये कंपार्टमेंट से, तो ए में जा रहा है, ए में से जाने के बाद ये पाइप में से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा जाके लास्ट में क्या है, आई में आ रहा है, ठीक है। दिस इज द एंट्री पॉइंट ए एंड दिस इज द आउटलेट दैट इज आई, मतलब क्या है, सेवरल टाइम्स आपके सिस्टम में घूमते हुए वो लास्ट में आई में से बाहर निकल रहा है। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर मल्टीपास कंपार्टमेंट हीटर। ओके, सो एडवांटेजेस, multipass construction decreases the cross section of the fluid path thereby increases the fluid velocity, ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि इसका वेलोसिटी सिंगल पास ट्यूब हीटर का आपका वेलोसिटी कम था, उसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्रॉस सेक्शन फ्लूइड पाथ क्या हो रहा है, उसका डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है, क्रॉस सेक्शन कम हो गया, सीधा सीधा जाना है आपका, तो फ्लूइड वेलोसिटी भी क्या रहेगी, एनहांस हो जाएंगी। ओके, सो दस मल्टी पास ट्यूबुलर हीटर्स आर सुपेरियर टू द सिंगल पास शेल ट्यूब हीटर्स, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन में आड़े में से जाना पड़ रहा है उसका, इसका कैसा काम है, सीधा सीधा जाओ, ठीक है। सो दैट्स वाई क्या हो रहा है, इसका फ्लूइड वेलोसिटी बढ़ रहा है इन केस ऑफ द मल्टीपास हीटर। ओके, डिसएडवांटेजेस, द फैब्रिकेशन ऑफ अ मल्टीपास हीटर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, कंस्ट्रक्शन भी क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड द प्रेशर ड्रॉप्स थ्रू दिस apparatus इज इंक्रीज्ड, ठीक है, क्यों, बिकॉज द वेलोसिटी इज अगेन इंक्रीज्ड। ओके, मोर नंबर ऑफ एग्जिट एंड एंट्रेंस पॉइंट इंक्रीज द फ्रिक्शनल लॉसेस। ओके, दिस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द पंपिंग ऑफ द फ्लूइड, मतलब क्या है, एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू योर सिंगल पास हीटर, क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीपास हीटर में एक से ज़्यादा टाइम आपके फ्लूइड को इक्विपमेंट में रहना है, तो एक से ज़्यादा टाइम आपके इक्विपमेंट में घूमना है, मतलब क्या, उसको उतना ही टीडीएस है, वो उतना ही फैब्रिकेशन है उसका, उतना ही ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप्स हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो दैट्स वाई इट इज़ डिसएडवांटेजियस एज कम्पेयर टू द सिंगल पास हीटर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।